السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبین بدل نعرہ تکبیر اللہ اکبر. روشن چہرے، روشن آنگن اور روشن لفظ اور روشن جذبے کے ساتھ جواب آنا چاہیے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حق نعرہ حیدری یا علی. حیدری یا علی. سے لے کر آخر تک نعرہ حیدری یا علی. حیدری یا علی. زندہ باد. زندہ باد. مردہ باد. مردہ باد. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. رزق میں اضافے کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. قرضوں کی ادائیگی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. اپنے اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھرنے کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. اپنے روشن اور پروقار چہروں کو نام علی سے اور پروقار کرتے ہیں. دعا ہے کہ زندگی میں بھی ہم علی علی کریں. جنابوں پر بھی ماتم شبیر جاری. جب ہم قبروں میں جائیں تو شہنشاہ کی آمد سے ہماری قبریں کشادہ ہو جائیں. کرتے بدلے تو ورد علی علی ہو جائے. ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے تو بے ساختہ زبان پہ لفظ علی آ جائے. زبان علی علی ہو. کہتی ہے کہ جنت کا در کھلتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد. اور بند ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے یا علی مدد. اسی دروازے سے علی علی کہتے ہیں. اور جنت میں بیٹھ کر بادشاہ کا، شہنشاہ کا، وسیع کا دیا ہوا جام علی علی کر کے پینے کے لیے پوری توانائیوں کے ساتھ مل کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. ایک دفعہ اپنی توانائیوں کو اور سمیٹنا ہے، بدن کی طاقتوں کو پورے عروج پہ لے کے جانا ہے. مولا کی آمد میں تاجیل کے ساتھ مکمل طور پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام
على خاتم النبيين وشفيع روز جزاء محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد، الحديث القدسية الصوم لي وأنا أجزي به نعي حیدری. آپ سب کے چہروں کو خالق ہمیشہ ولایت علی سے بہت کمال ہے اور کمال در کمال ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو وہ پھر بھی بلا رہا ہے. رمضان کی یہ رات بہت اہم رات اور شب جمعہ بھی ساتھ ساتھ. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ علی سے شروع ہوں اور علی تک جائیں، کیونکہ شب جمعہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث ہے کہ جس طرح ساری کائنات میں ایام میں سردار، ایام میں یوم یعنی دنوں میں جو سردار دن ہے وہ جمعہ ہے. جو سرکاری جمعہ کو ملی ہے وہ دنوں میں کسی کو میسر نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح کائنات میں جتنے بھی ولی ہیں ہر ایک ولی ہے، جیسے جمعہ افضل ہے ویسے ہی میرا بھائی بھی افضل ہے. زیادہ آج علی علی ہے، ہر جگہ مسائل بھی علی ہے اور مسائل بھی علی ہے. اور حدیث قدسیہ سے مراد حدیث یعنی مطلب اس کا ہو زبان صادق اول کی. حدیث عام حدیث میں اور حدیث قدسیہ میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی خالق کا متعلق ہو قرآن کے علاوہ خدا جو چاہے وہ زبان محمدیت سے ادا کروا دے. بہت پیارا جملہ ہے اور المدین اس کو دو طرح سے ادا کرتے ہیں. الصوم لی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے. ساری رات اس طرح انشاءاللہ ہم نے سحری تک عبادت کرنی ہے کہ آج کے روزے کا معنی سمجھ آ جائے جس کو ہم نے رکھنا ہے. الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا، کوئی اور نہیں. اللہ کہہ رہا کوئی اور نہیں، میں. وَأَنَا، اور میں اجزی، جزا دوں گا، بدلہ دوں گا. پوچھا کیا بدلہ کیسے ہے؟ فرمایا دو طرح کا بدلہ ہے. ایک بدلہ جب تم افطار کرتے ہو، ادھر توبہ نامہ، مغفرت نامہ، گناہوں کی بخشش، 70 پشتوں کی بخشش. نوالا ہے 70 پشتیں. کیا سن رہا؟ 70 پشتیں جو معاف کروا دے وہ یہ قبولیت کی منزل کو سمجھے. قبولیت والا روزہ ہو، قبولیت والا روزہ ہو، 70 پشتوں کو معاف کروا سکتا ہے. معنی بدلتے ہیں علماء دین نے جو دوسرے طریقے سے اس حدیث کو پڑھا تو اجازت ہے. الصوم لی، الصوم لی، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے. اجزا بھی، اجزا بھی، جزا بن جاتا ہوں روزے کی میں. بات سمجھے گا نہیں، ابھی آپ چوپے سارا مجمع نہیں بولا. پڑھنے میں ایک کہاوت ہے تو بیدار مجمع مجھے چاہیے. بیدار ہوں گے تو اس کو سمجھیں گے نا، ورنہ سوتے ہوئے تو سوتے ہیں، البتہ ایک کا سونا ایسا ہے. محمد ایک کہاوت ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل میرے محل میں جو بندہ بھی آ جائے گا جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گا. جس بھائی ہے نا
महल खुलेगा जिसकी जो चीज हो जाएगी, जिस पे हाथ रखेगा वो चीज उसी हो जाएगी। हर बंदे ने सोचा महल में हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, सोना की है, चांदी की है, मैं गुलाम पे हाथ रखूंगा, मैं गुलाम पे हाथ रखूंगा। अलल सुबह दरबार का दरवाजा खुला। रवायतें कहती है हर कोई भाग रहा था। भागने वाले और होते हैं, रवायतें कहती है जो भाग रहे थे, किसी ने तख्त पे हाथ रख दिया, किसी ने उसके सोने जो हीरे जवाहरात का संदूक था उस पे रख दिया, किसी ने तलवार पे रख दिया। हर कोई अपनी अपनी चीज लेके बड़ा खुश था। आखिर में सीधा देखा एक फकीर था, लेकिन वो दरे अली का फकीर वो आया, आके उसने बड़ी इत्मीनान के साथ आखिर में आया और बादशाह को हाथ रख दिया। बादशाह के ऊपर हाथ रख के जब अलल सुबह ऐलान हुई, यानी पूरा दिन गुजर गया, बादशाह ने मुस्कुरा के कहा कि ए बंदे मुझ पे क्यों हाथ रखा था? बादशाह सब कुछ जब तेरा है। खुदा कहता है, मकीन फरमाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है ये रोजा तेरा जो मेरे लिए है, याद रख मैं तेरा हूँ तो मेरा है। अगर एक मकबूल रोजा हो जाए तो रब आपका हो जाता है, जब रब आपका हो जाएगा तो सारी कायनात आपकी हो जाएगी। आपकी खिदमत में पेश न करता हूँ, जिसका एक रोजा इतना अहम है, रब उसका हो जाता है, जिसका जागना भी उसका हो, जिसका कपड़ा देना भी उसका हो, जिसका मुस्कुराना भी उसका हो, जिसका किसी के लिए सोना भी उसका हो, जिसका कमरी ओढ़ना भी उसके लिए। क्या कहना मैं जज़ा दूंगा। आज की रात है, मेरे मौला ने चंद वसीयतें की, साथ साथ वसीयत और साथ साथ वो मेरे मौला फरमाते हैं शियो याद रखना, तकवा इख्तियार करो, और दूसरी बात ये याद रखना कि दो मोमिन अगर लड़े हों तो खुश ना होना। आज की रात बहुत बड़ी, दो मोमिन, क्योंकि खवातीन का वजन लड़ाइयाँ यहाँ पे होती हैं, तो मेरी माजरत के साथ, मगर हकीकत है नारे हैदरी। हर मजलिस का उन्वान तकरीबन खानदान होता है, पर मैं जब दो मोमिन लड़े तो कोशिश करो कि सुलह करवाने वाला बन जाओ। अबू सर ने जब ये जुमला तब कहा, अबू सर ने मौला नबी से भी सुना था, मौला वो कैसे सुलह करवाई जाए, कोई ऐसी बात को बता दें जिसका नाम लिया जाए तो सुलह होना चाहिए। मेरे मौला ने अबू सर से कहा, अबू सर वो राज चाहिए जिसकी वजह से मोमिनों में सुलह जल्द से जल्द हो सकती है। फरमाया जी मौला। अबू सर जाओ कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। अबू सर कमरे में गए, कोई बात नहीं, कमरे में गए तो क्या देखा, एक चेहरा था जो रोशन बड़ा राज क्या पाना था। जैसे ही अंदर गए तो एक चेहरा था जो बड़ा ही रोशन था, मुतमिन था। अबू सर चेहरे को देखा, जो अंदर होता है वही सामने आ जाए, क्या मिजाज बन जाता है। अबू सर का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। अबू सर आगे गए, क्या देखा कि मौला ने सजदे में सर रखा हुआ और मौला अलैहिस्सलाम एक जुमला कह रहे थे, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर शीलातीना बिहक़्क़ि मुहम्मद मुस्तफ़ा। सच्चे अल्लाह मेरे शान मोहम्मद, आज की जो रात है, ए अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ए अल्लाह शान मोहम्मद और आले मोहम्मद की मग़फ़िरत फरमा बिहक़्क़ि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला अबू ज़र ने सुना, अबू ज़र पलटे, अब क्या देखा, नबी की सजदे में से और नबी की एक आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर उम्मती उम्मती लफ्ज़ उम्मती बिहक़्क़ि अली अलैहिस्सलाम। नबी फरमा रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अबू सर दरमियान में थे,
उधर भी राज था, इधर भी राज था। सदके नबी बता रहे थे जब भी दोस्ती आतिशी करवानी हो या नबी का नाम ले लो या अली का नाम ले लो। बेशक अली अली हो रहा था तो किसी ने हमारे एक सैयद आलिम से पूछा, देखिए आपके जब जो सैयद है वो तो बड़े खुश होंगे, बेशक लेकिन उम्मती भी परेशान ना हो, क्योंकि उम्मती भी तो कुछ है तो इधर बैठे हुए हैं। बेशक बेशक देखिए ना, ये मोहब्बत है, वो सुन लेते हैं किसी को किस तरह सुन लिया। में बहुत एतराज था उन्हें जनाबे उस आली पे कि आप सैयद क्यों। असल में बात ये होती बंदा जब खुद ना हो वाह उसे बड़ा दुख होता है, ये क्यों है। खुदा के लिए ये ना सोचा करे कि वो क्यों है, वो क्यों है। मौला जो उसके पास है तू भी गए, अल्लाह उसके पास भी रहना दे, मुझे भी रहना दे। बेशक बेशक हसन की इजाजत नहीं है, राइट की इजाजत है। बहुत दुख लगता था क्योंकि हर जगह अली अली होता था। एक दिन बैठे तो बताएं तो सही, हमारे जब भी दुनिया से चले गए, आपके जब अली भी दुनिया से चले गए, आपके जद में और हमारे जद में फर्क क्या। बस आज की मदद यही के आपके जद में हमारे जद में क्या आपके जद में और हमारे जद में क्या फर्क है। वो भी कब्रों में है, ये भी कब्रों में है। चेहरा मुस्कुरा उठा, परेशान ना हो। परेशान तो वो हूँ, वो आलिम हूँ जिनके पीछे कोई मददगार ना हो। बहुत सैयद थे, फरमाया सुनो मेरे जद में और तुम्हारे जद में बहुत बड़ा फर्क है। बेशक समझ नहीं आया, फरमाया जितना वाजिब और हराम का फर्क। अगर नहीं समझ आई तो चले मैं रोक के दोबारा ये जुमला आपकी खिदमत में पेश करूंगी। फरमाया देखो ये दिन तो नहीं मगर आपकी तवज्जो के लिए बस दो चार जुमले कहूंगी। फरमाया रजब तेरा थी, सदके वाजिब और हराम में जो फर्क है उसने तेरे बाप में और मेरे बाप में। सदके आपकी समझ ना आई तो याद रख, तेरा बाप जहाँ पे पैदा हो जाए वहाँ पे नमाज पढ़ना, उस जगह पे नमाज पढ़ना हराम है। मेरा जद आ रहा है वहाँ पे नमाज पढ़ना वाजिब। खुशनुदिए मौलूदे काबा बुलंद सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। से दुआ लेने के लिए एक जुमला कहूंगी, अदाए तहारत और होता है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना मजमा, और इजहार तहारत और होता है। वाह इजहार होता है हो मगर कभी जाहिर हो जाए, बेशक अदा होता पहले से वो दिया जाए। सदके तेरा रजब को इजहारी तहारत नहीं हुआ, वो तो कुरान आयतें बेच के कर रहा था। युरीदुल्लाह अल्लाह तेरे नजर दूर है, ये बात यहाँ पे इजहार तहारत था। तहारत तेरा रजब को अली की मां कर रही थी। सदके सदके बेशक तहारत और इजहारे तहारत में फर्क है। आलिम भाई डट के का आपने कह दिया तेरा रजब को अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में, कोई दलील सदके वाह तारीख से दूं या कुरान से। सदके खाने की तारीख तो आप शियों ने खुद बनाई हुई है, बात यह है कि कुरान से है कि अली अलैहिस्सलाम तेरा रजब को कुरान में आए तभी हम मानेंगे। जाके सुनिएगा बात, आलिम साहब ने सैयद ने आया मुबारका पढ़ी, वलाउ अन्ना कुरानन, अगर कोई ऐसा कुरान होता तो पहाड़ों पे नाज़िल किया जाता, तो पहाड़ सजदा हो जाते, रेजा हो जाते, अपनी जगह को छोड़ देते। फरमाया ये आया मुबारका है सदके बेशक ये आया मुबारका कुरान पाक में है कि नहीं है। कहा कुरान पाक में आए थे का मंसूख तो नहीं है। वाह कुछ आयतों में है ना, का मंसूख तो नहीं है, का नहीं रासिख है। रासिख है, रासिख है तो पता चला कोई इल्म में रासिख था। सदके कोई इल्म में रासिख था। किसी ने पूछा मौला ये कौन है जो इल्म में रासिख है। अली सरकार ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा था ना हम ही वो तो है।
कुरान है उसका पत्थरों पे नाजिल होता है ना आया मुबारका। बेशक बेशक आज बेशक गजब भी यहाँ से कुरान से नजर आ रही है। सदके। आंखें होनी चाहिए, बेशक। आंखों पे बगैर नजर नहीं आता। रवायत में कहती इधर आयत है, इधर का अगर याद रखो आयत मौजूद है, लेकिन अगर हजरत फातिमा बिनते असद सदके चल के न जाती, अभी आप चुप हैं, शायद और भी आयत चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम पाक रखो इस घर को। सदके वाहिदना इब्राहिम व इस्माइल अन त्वहीरा, इब्राहिम पाक रखो इस घर को। किन के लिए? रखो करने वालों के लिए, करने वालों के लिए। आज एतकाफ की रात है, यानी हमारे लिए 3 दिन का जो एतकाफ है, इबादत की रात है। आज एतकाफ की इबादत की रात है। नमाज पढ़ने, रोजा रखने, नमाज पढ़ने वालों के लिए, रको करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए। और इनमें 4 चीजें। पहली सजदा, रको, सजूद, एतकाफ, सदके चक्कर। अभी भी आप चुप हैं, आयतें मैंने 2 पेश कर दी, फिर अगली रोक के, ताकि ये मानी समझ आ जाए। आगे बीबी आई सदके वरना कुरान, अगर कोई कुरान होता बीबी नाप के कुरान को लेके चली सदके। आयतें कहती हैं ऐसा कोई कुरान ही नहीं है कि आयतें उतरती और पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। बस बीबी आई, बीबी ने पहला काम क्या किया? सदके क्या किया? बीबी ने चक्कर लगाए। सदके करने वाली बीबी थी, सजूद करने वाली भी बीबी थी। बीबी अंदर चली गई। शिया हो या सुन्नी हो, हनफी और हम 3 दिन का है एतकाफ। और अगर आप बुरा ना बनाए, घरों में एतकाफ नहीं होता। हमारे मसलक के मुताबिक आपको मस्जिद में जाना है। क्यों जाना है? कोई बीबी है जो क्या समझते हैं कि हजरत फातिमा बिनते असद 3 दिन क्यों रही? वहाँ से पता चल गया, एक आयत की समझ आ गई। इब्राहिम पाक रखो एक घर को, रखो करने वालों के लिए, जवाब करने वालों के लिए, चक्कर काटने वालों के लिए, और वहाँ पे एहतराम करने वालों के लिए। 3 दिन बैठ के बता दिया। अगर कोई एहतकाफ के लिए आयत उतर रही है तो फातिमा बिनते असद के लिए। हैदर 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 नारे हैदरी या अली मदद हक है। नारे हैदरी या अली, दिल की जुबान से नारे हैदरी या अली। कोई तो है, सदके कोई तो है। वाह अच्छा, अरबी जुबान बड़ी प्यारी, बेशक समझे ना, बड़ी प्यारी है। अच्छा, यहाँ पे एक रोक के आयत फिर पलटूंगी, आप मुझे याद करवा दी जाए कर आयत मैंने रोक दी। अहले मिस्र, यूसुफ नामा, अहले मिस्र याद है ना? बेशक यूसुफ पे बनने वाली फिल्म ने बता दिया कि मिस्र भी कोई एक सल्तनत थी बेशक, जो बेशक। दरिया के एक तरफ रहती थी बेशक। और अहले पन्नी की या दूसरी तरफ रहते थे। दरमियान बेशक। में एक दरिया था और दरिया के जरिए वो क्या करते थे? कारोबार करते थे। उधर के इधर आ जाते थे, इधर के उधर जाते थे, आना जाना जारी रहता था। 2-4 बातें और दिल अली अली होगा। जब दरख्तों की तिजारत करनी होती वाह तो दरख्त को उस जुबान में भी शजर कहते थे। वाह तो बड़े बड़े लफ्ज नहीं लिखते थे, बस एक कागज पे शीन लिख के भेज दिया जाता, उन्हें पता चल जाता कि दरख्त चाहिए। दरख्त चाहिए। लेकिन कौन से दरख्त चाहिए? फल वाले चाहिए या बगैर फल के चाहिए? अगर फल वाले चाहिए तो सीन के ऊपर नुक्ते लगा के उसे शीन बना दिया जाता, और बगैर फल के, बगैर समर के अगर दरख्त चाहिए होता तो शीन से लिखा जाता, मगर नुक्ते न लगाए जाते। इन्हें अब की समझ ना आए, एक समझदार है, एक बेसमझ है कि आप बोले नहीं, इतना ही फर्क है जितना शिया और सुभान अल्लाह। फर्क है ना? बेशक बेशक वो भी है, अगर फर्क बड़ा है और है
तो कीजिएगा कोई फल के बगैर है। सुभान अल्लाह। ये आपकी माँ का वो फल है जो आपके सीने में चली गई है, जो रहे न रहे मगर ये फल है जो कल भी अली अली करवाता था। अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। शाह बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजाले मोहम्मद। जब ऊँट का कारोबार करना वाह, हुआ, वाह। इधर के उधर उधर के उधर, ऊँट अगर सारबान के साथ चाहिए होता तो नुक्ता लगा देते। वाह वाह बात समझिएगा। और अगर सारबान के बगैर चाहिए होता तो नुक्ता न लगाते। सारबान पता है ना, सारबान चलाने वाला, अगर उसके साथ चाहिए तो नुक्ता लगा देते, अगर बगैर चाहिए तो नुक्ता लगा देते। जैसे में लिखा सारे लफ्जों को छोड़ के, अगर घर, एक बंदे उधर जाते उधर वाले इधर जाते, रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, मकान चाहिए, अरबी और वहाँ की तारीफ। जिस घर में बंदा रहता है उसे कहते हैं बैत, बैत अरबी में। और जिस जो अपना ना हो, ये आपका अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, नस्लों तक जारी सारी रही है आपको। और ऐसा घर जो आपका विरासती ना हो, आपने किसी से लिया, उसको आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, उसको कहते हैं अरबी में दार। दौलत दार। फरमान ये क्या करते थे, जब कोई किसी के घर में आता, अगर विरासती घर खरीदता तो बैत लिखते मगर नुक्ते के बगैर। वाह, नुक्ते के बगैर उधर तो नहीं चले। और अगर कोई ऐसा घर अहले फनीकिया खरीदो फरोख्त करते जो विरासती होता तो बे के नीचे नुक्ता लगा दो। अब आए आयत, अल्लाह फरमाता है इन्ना अव्वला बैतन, सदके इन्ना अव्वला बैतन वुज़िया लिन्नासी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है बेशक वो पहला घर, सदके दार नहीं कहा जो मिलाए अली अपने वाले हैं, कभी उसकी मलकियत होता, कभी इसकी मलकियत होता। मालिक ने लफ्ज़ बैत लगा के बता दिया आने वाला है, किसी से घम नहीं ले रहा, विरासत ही पा रहा। अली अली सलामत रहिए। अली 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 बेशक हैदरी या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजाले मोहम्मद। अल्लाह ने दार नहीं कहा, सदके अल्लाह ने बैत कहा। सदके पहला घर, पहला घर, पहला घर जो लोगों की हदायत के लिए बनाया गया। सदके अल्लाह ने बैत में, सदके बैत में, नुक्ते वाले बैत में। वाह तरीके की मिसाल भी समझ कि नुक्ते, नुक्ता और नुक्ता क्यों ना हो। बेशक बेशक वाह ये बात फरमाते मैं वो हूँ जो मोहम्मद के नीचे रहने वाला। सदके सदके ये है मगर नुक्ता अली इब्ने अबी तालिब। बेशक इतना बड़ा फर्क, एक दफा वो सालिम की तरह आंखें खुल गई, कहा सुना
सदके अब धीरे से पढ़ने लगे थे, मगर क्या करें, हट धर्मी का, मगर ये नहीं समझते इनकी हटदर्मी इल्म के दरवाजे खोलती है। बेशक कहाँ एक निस्बत होती है, देखें जो ग्रामर को जानते हैं, निस्बत और इजाफत। सादा सादा कर दूं ताकि हर एक ज़हन में इंशाल्लाह चले जाए। इजाफत क्या है? अदा है, लेकिन मेरी बन गई, इजाफत हो गई। बेशक काहिर की अबा, वो आपका सगा भाई नहीं है मगर बरादर निस्बती है। निस्बत आ गई। अरबी में दो तरीके हैं किसी को अपनाने के लिए या किसी का नाम किसी की तरफ करने के लिए, मंसूब करने के लिए, या निस्बत या इजाफत। बेशक एक और भी है, जब बंदा चाहता नहीं निस्बत क्या दे, अपना आप ही दे। वाह वाह जब इंसान चाहता है मैं अपना आप ही दे दूं, उसे कहते हैं मुश्तक। सदके उसे क्या कहते हैं? मुश्तक। ये ना हो कि रात की वजह से आप मेरी मजलिस को ऐसे लें, पर इसको कहते हैं मुश्तक। वो बड़ा मुश्ताक था चेहरा, सदके वाह सुभान अल्लाह। इतना मुश्ताक था, हर नबी को निस्बत से पुकारा। वाह लेकिन जब ये पांच आए तो कहा अंता महमूद व हादा मुहम्मद। यहाँ पे भी खूबियां मौजूद के साथ, यहाँ पे भी मुश्तक नहीं है, यहाँ पे भी खूबियां ली गई, लेकिन रवायतें कहती हैं वाहद अली हैं। सदके वाह वाहद अली हैं। फरमाया मैं भी अली हूँ तो तू भी अली है। वाह 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 हमारा ये हैदरी या अली तू भी अली है। कुरान खोले, कुरान को अली अलैहिस्सलाम का नाम आपको मिल जाएगा। मैं भी अली हूँ तो भी अली है। बेशक और पर फरमाया याद रखो अकीका करते हो, बेशक एक बकरा कुर्बान करें तो हम मुसलमान। बेशक इधर आ गए और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बच्चे को हाथों पे लिया और एक ऐलान। मैं आगे इंशाल्लाह मंजिल आगे है और वक्त की मुझे पता है कि कोई नहीं आगे मस्जिद कोई नहीं होगी। नाराए हैदरी या अली। मैंने आपको जाने नहीं देना, कुछ जाके फिर दिखाए इंशाल्लाह। नाराए हैदरी या अली। तो नींद है तो आज आनी नहीं है आपको। बेशक और मजलिस में जब अली अली हो तो नींद कहाँ आती है? अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेके आए और अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खाना काबा में आके ऐलान किया, ऐ काबा वालों वाह नेमत उज़्मा आ गई। सदके वाह ऐलान है कि दो काम अगर करो तो आओ मेरे बेटे के अकीके का खाना खाओ। और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 1000 ऊंट, माशाअल्लाह, रवायत है 1000 ऊंट और 300 गाय, भेड़े और बकरियां, कुल कितने हो गए? 1300। हम एक करने तो मुसलमान वो 100 कर रहा है। और 1300 सिवा करवाने के बाद, खाना तैयार होने के बाद दो ऐलान की अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। पहला काम क्या है? आओ उस बैत का चक्कर लगाओ। ये कहाँ से चल रहा है? ये कहाँ से चल रहा है? कहाँ उस घर को, उस बैत को आके चक्कर लगाओ, सलामी को आके चक्कर लगाओ। कितने का? 7। वहाँ से लेकर कयामत तक 7 ही बनेंगे। 7। दूसरा काम क्या है? तो जिस कमरे में मेरे अली का झूला पड़ा हुआ, कहाँ था? फरमाया जहाँ पे रुकने यमानी है। कहाँ? जहाँ पे रुकने यमानी है वहाँ पे मौला का सरकार का झूला था। और उस नौमौलूद को आके सलामी पेश करो। कहते जो हज पे जा चुके हैं वो गवाही देंगे, जब आप रुकने यमानी पे जाते हैं, शिया और सुन्नी या जो भी हो, लेकिन जब भी रुकने यमानी पे जाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका। आप तुम्हें पता चला अबू तालिब ने 2 काम करवाए, एक साथ चक्कर लगवाए, दूसरा अली को सलाम करके कह दिया जो भी इधर आएगा अबू तालिब और अली को सलाम जरूर करेगा। आज भी आप सलाम करते हैं? इंशाअल्लाह। अबू तालिब और उनका बच्चा ये सदके नाम ये और
एजाज क्या है? अभी छोटे से तो नबी पाक ने जुमला का अम्मा दूर नहीं करना, वाह, जहाँ पे मैं सोता हूँ मेरे अली का बिस्तर झूला भी वहीं से रख दीजिएगा। नबी नबूवत लेटती है तो साथ विलायत भी लेटती नहीं, बस झूला भी जलाते हैं। थोड़े से मेरे मौला बड़े हुए तो क्या करते थे? इम्तियाज तुम्हारे आपके बाप में और मेरे बाप में फर्क क्या? ये था ना, कहा सरकार मेरे मौला छोटे से बच्चे को थोड़े से मगर चंद दिन के नहीं थोड़े से बड़े हैं तो लेके सीने पे ले जाके हर पूछे हर बाजार हर कोने पे जाके एक ऐलान करते, लोगों ये मेरा लोगों ये अली मेरा है और मेरा कहने के बाद फिर कहते मेरा भाई भी है। कोई ये ना समझे मेरा क्या है, मेरा भाई भी है, मेरा वसी भी है। रवायत कहती है मानने वाला वही होता है जो नबी की सुन्नतें अदा करता हो। नहीं है कि हम अली अलैहिस्सलाम को अपने सीने पे लेके हर चौक और हर गली में जाके अली अली करें, मगर आज का मलंग हर चौक में जाके सीने में अली को रख के कह रहा है अली कल भी हक था, अली आज भी हक है। अली 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 जान जान अली अली जान जान अली अली हरदम अली अली हरदम अली अली हरदम अली अली पंचतनी पाक बुलंद कर सलावत मोहम्मद माले मोहम्मद वासिल फरजाई मोहम्मद क्या अपने ईमान से नहीं तुम्हारे ईमान के अलग। देखें हुक्म यही है कि जितना मजमू सुने उतना ही सुनाया जाए, ऐसे ही ना। तो मुझे इशारा कर दीजिएगा जब आप थकने लगे। नारा ढीला पड़ गया, इसका मतलब मुख्तसिर हो जाना चाहिए। नारे अहमद बिन हम्बल से आज वो बंदा लेगी ना आले जब बताएं जी परिश्रम करते थे उतर रहे कि नहीं? बेशक बेशक कमाल में उतर रहे कि नहीं? बेशक 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 आज की रात में उतरेंगे तो कब उतरेंगे? तीन ही कराते हैं शब्बे कदर की करते हैं। आज लोग उतर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुकाम पे उतरना है। खुदा जल्दी मत कीजिएगा, फरिश्ते देने आते हैं। बेशक बेशक आते हैं पर मैंने कहा कि फरिश्ते उतरते, फरमाया हाँ कहा अच्छा करूंगा कि यहाँ से सवाल करूंगा, कोशिश समझिएगा चलाकी हम भी करते हैं। इधर से करूंगा फिर इधर से पूछूंगा फिर इधर से पूछूंगा फिर इधर से, ये अपनी गिनती कर रहे थे। इधर से पूछूंगा लेकिन जाते साथ तो पूछ नहीं सकते थे। कहा पहले नबी पाक का जिक्र करते हैं। कहा अहमद हम्बल साहब से नबी पाक के फरिश्ते आते हैं? बेशक आते थे। कहा पूरी जिंदगी में आपकी गिनती के मुताबिक नबी पाक कितनी दफा फरिश्ते आए? 12,000। वाह 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 कुरान जैसे चेहरे नहीं चाहिए हमारे सर से बिना यहाँ 12,000 मर्तबा का आयतें तो इतनी नहीं, बस आयतें क्यों तो नहीं आती? बेशक वाह आयतें लेके तो नहीं आते थे। कभी ऐसे भी दिल चाहता था, ऐसे भी दिल चाहता था, आ जाते थे। कहा कितनी दफा कहा? 12,000 मर्तबा। अब उसने कहा अच्छा नबी पाक का जिक्र कर, नीचे से फिर इधर जवाब मिल गया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर आगे जाऊंगा। तो अच्छा बताएं हमारे चौथे खलीफा हजरत अली करमुल्लाह वजहा पर कितनी मर्तबा फरिश्ते आए? सके वाह सवाल ऐसा था कि इसका जवाब नहीं दिया, उधर जाओ उसे क्या पता तुम्हारी इधर से चलती है अल्लाह की आदर से चलती है। बेशक बेशक तुम्हारी नजर में चौथे हो सकते हैं, वो अल्लाह की नजर से पहले है। जब कहा बताए कि हजरत अली करमुल्लाह वजहा पे कितनी मर्तबा फरिश्ते उतरे? का 34,000 मर्तबा। कहा ना 34,000 मर्तबा। ये कैसे मुमकिन है? नबी पे 12,000 मर्तबा आए और आप इनके अली पर दुनिया को कहने की इनके अली पर 34,000 मर्तबा आए, नबी पे 12,000 आए। क्या तुम्हें पता नहीं है? नबी पे
तुम्हारे मोहम्मद अभी बड़े उठते हैं कि जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह 12,000 मरतबा। आप बताएं कोई अगला पूछ सकता है इसके आयत है कि नहीं? बस वही तक गई, वाह किसी को कहने की जरूरत ही नहीं थी। का बस बताओ तेरा अफजल है कि मेरा अफजल है? सदके वाह फिर भी क्या करें, कहा नहीं फिर भी हमारे देने वाले का हाथ बड़ा था। कहा कहाँ बड़ा था, कहाँ बड़ा था? आओ मैं तुम अपने की बताओ, बस मैं एक जुमला अपने का कहता हूँ। प्यारे ने कहा सुनो, तुम्हारी रिवायत बहुत लंबी रिवायत है लेकिन कोशिश की जल्दी जल्दी सुन ले। इब्ने मसूद, मैं सोच रही कौन सी पढ़ूं कौन सी ना सुनाना है। इब्ने मसूद की मशहूर रिवायत थे, अपना नहीं थे, अहले सुन्नत वल जमात का। वो कहते हैं जब उन्हें कोड़े लगाए हैं ना मोहब्बत अली सदके 10 सहाबा को कोड़े लगे हैं, कोड़े लग रहे थे तो कहा कि अगर अली अली ना करो तो कोड़े कटा। मैं कहा क्या करूं? मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से 4 फजीलतें सरकार अली अलैहिस्सलाम ने ऐसी देखी, अगर मुझे उनमें से एक मिल जाए एक तरफ और दूसरी तरफ खालिक के अकबर मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मे मुबारका और 2,500 साल की हुकूमत दे, 2,500 साल की हुकूमत और साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के, याद रखो चारों में से अगर एक मिल जाए तो मैं एक खूबी लेना पसंद करूंगा, ये सारा कुछ रद्द कर दूंगा। मुख्तसर का बताओ 4 सी खूबियां कौन सी है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं पहली खूबी ये है जो वो सोया कोई ना सोया। जब वो सोया मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे वो सोए वैसे अल्लाह सो रहे थे, अल्लाह की मर्जियां उतर रही थी। दूसरी खूबी ये है कि जब आवाज आई दरवाजे बंद कर दो। मस्जिद में दरवाजे बंद कर, मस्जिद का पहला लफ्ज या दूसरा लफ्ज था अदाए तहारत। अदाए तहारत और इजहारे तहारत। अदाए तहारत हो गया, इजहारे तहारत था। जब कहा के सारे दरवाजे बंद हो जाए, सबके बंद हो गए, हुक्म वही उसी दिन बंद हो गए, लोगों ने दूसरे रास्ते से आना शुरू कर दिया। एक दरवाजा खुला मैं कोशिश करी इंशाल्लाह। नाराए हैदरी एक दरवाजा खुला था, अगले दिन सहाबी आए, एक दरवाजा खुला था। अब सवाल तो ये नहीं कह सकते कि अली का दरवाजा क्यों नहीं तो मौला आपने किसके कहने पे दरवाजे बंद किए? किसके कहने पर दरवाजे बंद किए? जो मर्जी चले, नबी तो नबी है। खुदा पूछने वाले याद रख, ना मैंने किसी का दरवाजा बंद ना मैंने किसी का दरवाजा खोला रखा। समझने वाला भी वो है, खोलने वाला भी वो है। काश मुझे ये भी खूबी मिल जाती तो मैं सारी जिंदगी दे देता। 2 हो गई। पहली कौन सी थी? सोना। दूसरी दरवाजा। तीसरी सूरत बरात उतर गई। वाह, कह दो अल्लाह काफिरीन पे लानत बेशुमार। यहाँ पे कहना बड़ा आसान है। बेशक वो कोई शौका का अफजल खोनी है जी, वो मुत्तहिदीन की तरबियत है कि मैदान में आके भी सच को सच कहते, हक को हक कहते। कहा कि आया हमारी कहा सुने बरात और हजरत अबू बकर लेके चले। हजरत वो हमारे को कह देते हैं ना, हजरत अंदाज़े गुफ्तगू लफ्ज़ वही होते हैं, अदायगी में फर्क होता है। लफ्ज़ वही होते हैं, लहज़े बता देते हैं। आप बहुत अच्छी लग रही थी, आप तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। दुश्मनाने अहले बैत पिलाना, पिलाना, रिश्तेदारों का हक खाने वालों पिलाना,
मोहम्मद वचिल फरज वाले मोहम्मद 10 फरमान आयतें लेके चले। उधर से वही आ, वही क्या आई, ए नबी या खुद जा, तवज्जो है, ए नबी या खुद जा, या उसे देख जो तेरे जैसा है सदके। नबी ने सालों में से देखा है कोई मेरे जैसा, है कोई मेरे जैसा, सदके होता तो और नजर आता। बेशक। नबी ने तो बार बार देखा, बार बार देखा। वाह, मैं बेशक। अगर ने मुस्तफा पे सिर्फ अलूहियत की पूरी उतरी। सदके जो लफ्ज़ों को सुनने करे वो जाया ना करे, क्या करे, नारे हैदरी। या अली। सरकार ने तो ना कहा अली जाए, अली मौलाना ये कहानी मौला को गुस्सा कर रहा है, सदके कहा आयत है, पता है आयत है, गए और कहा कि अबू बकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, मेरे बात पर आयत उतरी, कहा जी। वाह रवायत कहते अबू बकर ने बहसी नहीं की। अल्लाह जाने अब अंदर की बात क्या है, अंदर डर था या पता था मैं इस काबिल नहीं हूँ। फौरन आयतें हवाले की, ये पलट आए, सरदार गए और सरदारों की तरह खाना काबा के साथ खड़े होके ऐलान किया, मेरा नबी कह रहा है, आयतें उतर रही हैं, अल्लाह फरमा रहा है कल भी लानत थी काफिरों पे। फरमाया ये इतना बड़ा एजाज है, बेशक इसके अलावा किसी को मयस्सर नहीं हुआ। वाह और तीसरी और आखिरी जुमला इंशाअल्लाह फजाइल का नारा है हैदरी। या अली। हमने अपनी आंखों से देखा, वो नबी का जुमला था। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं फजाइल दोबारा ये जुमला बहुत प्यारा है, लीजिएगा। फरमाया मैंने खुद नबी पाक से सुना, रात थी, सदके 39 दिन भी गुजर गए थे, वाह 39 दिन भी गुजर गए थे, तब मैंने सुना नबी पर आ रहे थे, कल मैं अलम उसको दूंगा जो हैदरे करार होगा। तीन जुमले हैदरे करार होगा, राजुल होगा। रवायतें कहती अंदर की बातें तो बड़ी है, लेकिन जो करार है सदके करार है और गैर करार है। राजुल आदमी बहादुर शुजा, बेशक गैर करार तो कभी मैदान को छोड़ के ना जाए। आम मानी तो हम यही कहते हैं, आम मानी जो मैदान में खड़ा हो, लेकिन फसाहत नबुव्वत इस बात की मुतकासी है कि एक ही तरह के लफ्जों को बयान न किया जाए। कहती कोई करार में और भी मानी पाया जाता था। का मानी क्या है? फरमाया करार उसे कहते हैं जो पलट पलट कर जो पलट पलट कर हमला करे। ला अली ला सैफ इला जुल्फ़िकार नाराए हैदरी या अली मदद आपसे बुलंदर सलावत मोहम्मद बस एक या दो जुमले जो पलट झपक झपक सदके महना भी हो मैं शराब भी हो। तीन जगह होती है ना, मैं शराब करार जिसे कहते हैं, जब दुश्मन मेमना वाला देखे तो इधर अली है, देखे तो इधर अली है, मैसरा वाला देखे तो इधर अली है, जगह अली अली नजर आए उसे करार कहते हैं। और अरबी लोग का मानी और भी होता है। फरमाया करार ऐसा करार, ऐसी तलवार चलाने वाले को कहता है कि जब वो तलवार चलाए तो उसकी तलवार उससे गुफ्तगू भी करे। करार के हाथ में इतनी ताकत होती है कि जब वो चाहता है तो उसकी जुल्फ पर अपने हाथ में जब लेता है तो उसकी जुल्फ पर कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। करार का मानी ऐसा तलवार चलाने वाला जो हर वक्त के हर नबी की मदद
कल मैं अलग मुझको दूंगा। वाह। फरमाया बस गए मौला और आ गए। बेशक गए बेशक मौला और आ गए। बेशक। लेकिन असल मतलब क्या था? इब्न मसूद फरमाते हैं जब अली सरकार आ रहे थे वाह एक जुमला था, वाह एक जुमला था। नबुव्वत ने वो जुमला किसी के लिए नहीं कहा। बेशक बेशक। सारे लोगों को देखेगा, लोगों आओ ना देखो मेरे अली का आना। लोगों देखो मेरे अली का आना। देखो अली कैसे आ रहा। बेशक सदके। अली का आना वाह। और अली जब आ रहे थे सर रख दिया, मगर एक कोने में खड़े हुए करवाए। मेरे मौला ने अली से पूछा या अली क्या बात? कमाला चंद में गया तो मैंने देखा औरतें भी खुश थी, बच्चे बच्चे आज की रात अभी छोटे अली कितने बड़े एहसास करते। कमाला बच्चे इसलिए खुश थे जैसे पहले लोग आते गए, मरहब में मारता गया, हम पे कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन मौला जब मैं मरहब का सर लेके पड़ता तो मैंने देखा औरतों के पीछे भी उधर है, बच्चे भी परेशान थे। कैरी मैं तुम पे पड़ा, कमौला मुझसे बर्दाश्त नहीं, चाहे वो काफिरों के बच्चे हैं, सदके। मगर बच्चे परेशान थे। फरमाया ए अली जाओ जिस तरह दिल चाहते, खैबर की औरतों और बच्चों के साथ सलूक करो। सदके। अली आए तो छोटे छोटे बच्चे, कोई खाते ऐसे नहीं, मौला आए बच्चों को भी गोद सदके। बच्चों का बढ़ाना नहीं, मेरा नाम अली है जो बच्चों से इतना प्यार मेरे मौला उसी के बच्चे हैं, आज उसी के बच्चे आज उसी के बच्चे हैं। मैं जुमला बार बार कुछ कहना चाह रही हूँ, आज उसी के बच्चे आज उसी के बच्चे सदके बोलो। हर कोई यतीमी की चादर को सर पे ओढ़े, कोई कहीं रो रहा है, कोई इमाम फरमाते हैं, वक्त का इमाम फरमाता है जब शबे जुमा आ जाए तो मुझे मत भूलना, आज अपने बाकी इमाम को याद और भी अपने ख्याल में बयान करो। आज वक्त का इमाम कहाँ हुसैन के बाबा का कुत्ता दे रहे की मजाक में पहुंचे पहुंचा हुआ और हो सकता है आपके पास किसी गिरिया कबूल कीजिए। आज दामन को चार करने का दिन है, आज करवाते हैं। जिस जगह पे मोमिन होता है ना, जब मोमिन का गिरिया बुलंद होता है
हमने तो बस अभी सुना है कोई इंसानियत दिखाने की माता चलिए बस मैं आज की रात की तरफ पलटाऊंगी और अनवन पूरी पूरी तारीख में 3 सर ऐसी मेरा बहुत मजा ऊपर से चोट लगे बैठा हो तो दर्द कम हो लेकिन ऊपर से भी कुछ गिर रहा हो और इंसान भी उठ रहा हो हो जाती है उस पे सरबत लगी रोने वालों को सर शदीद तौर पे पहली सरबत रवायतें कहती है आप और मेरे दोनों अली को इधर मौला सजने से उधर लानती ने सरबत काट को दे लो काट को दे लो एक सरबत मेरे मौला पाओ से अलग हो गए की चादर का वारिस हो गए एक लानती ने पीछे से अब्बास के सर में गोश्त का लगना था अब्बास जमीन पे सारी है सुनिएगा ये पंचों के सर वो किसी पंत के सर पे छोड़ आई थी तीसरी सरबत सैयदा ज़ैनब के सर पे एक लंबा सरबत का लगना था बाबा बाबा मुझे समझ नहीं आई उन्नीस का दिन आज की रात हमारे बुजुर्ग ने सैयद बादशाहों ने कहा था बेटी जाकिरा जब कभी ये वाला तो सैयद को अपने बेटे कहता हूँ ये जुमला कभी भी फरामोश न लोग शब्द कदर ढूंढते हैं याद रखो शब्द कदर इसी का नाम है अली मौला ने अली से उठा नहीं जा रहा सहारा देके थोड़ा सा उठ के मेरे मौला ने सहाबा को बुलाया आगा मेरे मौला ने वसीयत लिखवाई अल्लाह ने वसीयत लिखवाई और एक जुमला कहा मेरे को याद रखना तकवा इख्तियार करना को कभी ना भूलना आज की रात बिजली माता कर रहा है आज की रात मेरे मौला ने कहा था सलोनी सलोनी मुझसे पूछ लो लेकिन आज ज्यादा लंबा ना पूछो आज अली का सजद नहीं है
मौला ने चराग बुझाए और आवाज से इशारा किया, या बिल्ली, ए मेरी बेटी ज़ैनब, ए मेरी बेटी ज़ैनब, जब कहा है मेरी बेटी ज़ैनब, मेरे मौला ने क्या कहा? ज़ैनब देखने वाला कोई नहीं, ज़ैनब देखने वाला कोई नहीं है। एक तरफ आप पर होता हो, एक तरफ आप पर होता हो, ज़ैनब मुझे चल के शरीफ आपके सामने चल के बैठ गई। का नाम आना था, एक दफा अली भी तड़पे आसमान की तरफ, अल्लाह तबाह रहना, मेरी बेटी बड़ी हयादार आयशा, मेरी बेटी हुसैन को बुलाया, हुसैन जी बाबा जाओ, हुसैन मेरे पास इससे बड़ा लफ्ज़ नहीं है, अल्लाह मेरी जुबान में तासीर नाज़िल फरमा, अली का वो जुमला अदा हो जाए। मेरे मौला ने हुसैन को बुलाया, मेरे करीब आ जाए, एक तरफ हुसैन आ गए, चले आओ, एक तरफ की ज़ैनब बैठ गई, ने दो जुमले कहे, ए हुसैन मेरा सजदा मुकम्मल, वो इतना कई कौन सी खता मेरा सजदा करना, हुसैन ने क्या जवाब दिया, तेरा सजदा मैं मुकम्मल मेरा सजदा था तो बेटे उठाने वाले, बाबा मैं सजदा दूंगा, बाबा वादा हुआ ना कब्र होगा, बड़ी मुश्किल है ज़ैनब पर, बाबा मैं कासम के टुकड़े उठाए, बाबा मैं अकबर के बाजू कटवा लूंगा, बाबा मैं प्यासा भी होगा, मैं तेरे भी बरसाए होंगे, बाबा मुझे बाबा मैं सजदे में तुझे उठाने वाले तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, और हमारे पूरा हो गया। हुसैन ने सजदे में सर रखा, बाबा के 3 साल बच्ची आई, हाथ जोड़ के कहेगी नाना मेरा प्यासा बाबा,
कहते हैं बेटी मेरा बाबा क्यों कर चुकी और जुमला क्या था बाबा बाबा जब मेरे सर पे अब्बास भी नहीं हो मेरे सर पे हुसैन भी नहीं हो रहा मैं दूंगी बाबा हुसैन का किया किसी के हवाले नहीं किया किसी के हवाले एक तरफ अब्बास को बुलाया एक तरफ हुसैन को अब्बास के हाथ में मेरा हुसैन मेरा हुसैन सुना